رکھتے کہتے نہیں ہیں جی صبح آپ جاب پہ جاتے ہیں اور ذرا سی ہوا آئی بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں جی فلاں مسئلہ ہو گیا آپ کو تو دن رات بڑا پریشان کرتے ہوں گے لوگ لہو دیا ضربلا کے صوبہ پنجاب میں کوئی بھی ایسا ضلع نہیں ہے وہ تلگنگ ضلع کا نعت خوانوں کا مقابلہ کر سکے مس کی ہوئی مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک سے خوشبو ہے ایک تو میں اس کے لیے اس کے چہرے مبارک پر یہ خوشبو لگاؤں گا. السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ویورز آج ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے لگے ہیں وہ ہمارے علاقے کی سیاسی سماجی اور ہر قسم کے معاملات میں ہر شخص کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں تو انہوں نے ہمیں بڑی مشکل سے ٹائم دیا ہے ان کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے تو آج ہمارے اوپر انہوں نے شفقت کی ہے تو ملتے ہیں ارشد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کیسے ہیں ارشد بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ارشد بھائی اپنا کوئی تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں آپ نے کس طرح یہاں سے تعلیم حاصل کی اور کون کون سے اسکول میں پڑھے ہیں اور پھر آگے آپ نے کیا کیا؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے محترم دوست بھائی منیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہوں نے تھوڑا غلو کر لیا میں اس پہ تصحیح کر دوں کہ بندہ ناچیز جو ہے میرا نام محمد ارشد ہے اور اقوال کا رہائشی ہوں. اللہ رب العزت مجھ سے کام لے رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے. میرا شعبہ جو ہے جاب کے حوالے سے وابدہ ہے اور میری پیدائش 1980 کی ہے. میں نے بچپن ہی میں اپنے اس گاؤں اقوال میں جو ہے وہ پڑھا ہے. اس کے مڈل کے بعد میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا اور وہاں میں نے ایف ایس سی کی ہے. اس کے بعد پھر ایک کچھ عرصہ کے لیے لاہور جاب کے لیے گیا اور اس دوران میری جو اپنی چاہت اور تمنا تھی وہ زیادہ رجحان مذہبی تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں میں اپنے ملک کے نامور ستارے جو ہے وہ چاہے خطباء ہوں یا نعت خواں ہوں اور الحمدللہ 17 سال سے ملک کا کوئی ایسا نامور شاعر یا خطیب یا ادیب یا نعت خواں نہیں ہے جو ہمارے اس گاؤں اقوال میں نہ آیا ہو الحمدللہ. اور المختصر یہ کہ اس کے بعد میں پھر جاب میں ہو گیا 2003 میں. تو وابڈہ کے ساتھ اللہ کی شان ہے کہ کچھ خدمات جو ہے وہ اسلام آباد میں سر انجام دیں پھر ضلع چکوال میں 10 سال اور اب جو ہے ان ایام میں پچھلے تقریباً 6 سال سے اپنے گاؤں تلگنگ اور اپنے اسی ارد گرد کے دیہات کے ساتھ وابستہ ہوں اس شعبے میں. اچھا ارشد بھائی وافدہ کی نوکری تو بہت سخت ہوتی ہے ذرا سی ہوا آئی بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں جی فلاں مسئلہ ہو گیا آپ کو تو دن رات بڑا پریشان کرتے ہوں گے لوگ. جی بالکل اس حوالے سے تو واقعتاً ہمارا چونکہ بوسیدہ نظام ہے 1960 سے پہلے کا نظام چل رہا ہے اور ہمارے گاؤں کی بجلی بھی 1962-63 کی لگی ہوئی ہے اور ہمارے پورے علاقے میں جو گریڈ ہے اس کا بھی وہ اس طرح کا کام نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن اب جو ہے بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے اور پچھلے خصوصاً 3-4 سالوں سے یہ چیز تقریباً آپ لوگوں کو بہتری ہی کی طرف گامزن نظر آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا ارشد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ وافدہ کی جاب بھی کر رہے تھے جی جی اور یہ مشکل کام تھا آپ نے بتایا بوسیدہ نظام تھا لیکن اب الحمدللہ بہتری کی طرف آ رہا ہے جی جی تو آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ بزم آسان نعت کی کوئی مطلب بنانے کا بہت اچھی تنظیم بنانے کا بہت اور ہی اچھی. کس طرح ذہن میں خیال آیا اور پھر کس طرح اس کو اسٹارٹ کیا آپ نے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اچھا سب سے پہلے تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس حوالے سے پہچان بھی ہے ضلع تلگنگ میں ہماری اور اب تو الحمدللہ پورے پنجاب میں ہے بلکہ پاکستان میں ہم چل رہے ہیں الحمدللہ. اس میں اگر یہ کہوں تو میرے خیال میں بیجا نہیں ہوگا کہ جب اول ہمارا اجلاس یا جب یہ سوچ کی جا رہی تھی کہ ہمارے علاقے کا جو اچھا ٹیلنٹ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اچھی آوازیں دی ہیں اور ہم ان کو ایک سٹیج پرووائڈ کریں تو یہ سوچ میں آپ بھی شامل تھے. اور اقوالی میں مدرسہ قاسم العلوم مفتی الطاف فرمان رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں ہماری پہلے میٹنگ ہوئی تھی. اس میں بھائی منیر صاحب بھی تشریف فرما تھے اور ہمارے ایک اور دوست بھی ہیں. بہرحال ہم 8-10 دوست اس میں تھے. تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس چیز کو ہم نے آج سے 3 سال پہلے اسٹارٹ کیا اور وجہ کیا بنی بزم آسان بنانے کی. چونکہ میں 17 سال سے اس شعبے سے وابستہ تھا اور میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ہمارا پروگرام ایونٹ ہوتا خاص طور پہ مذہبی تو ہمارے اچھے ٹیلنٹ والے لڑکے وہ آ کے ہمیں بار بار کوئی چٹ دے دیتے کہ
हमें पढ़ने का 2 मिनट 3 मिनट मौका दिया जाए और उन्हें मौका ना दिया जाता। जबकि मैं उनकी दिल आज़ारी को देखते हुए सितम ज़रीफ़ी का शिकार हो गया और हत्ता कि मैंने अपनी महफ़िल में 2-3 को जब मौका दिया तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जिनको हम अ, बैरूनी सतह पे बुलाते हैं और बड़े-बड़े नाम हैं उनके बराबर नहीं तो उन जैसा ये पढ़ सकते हैं। हमारे इलाके के इतना टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सोच को हमने अमली मैदान जामा पहनाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुलीदी किरदार अदा किया और हमारे इलाके की मशहूर जितनी भी उलमाए किराम हैं, ख़ास तौर पर उनके पास हम गए, उन्हें ये जाके गुज़ारिश की और फिर हमने एक इलाका भर में एक जो है ना वो मुहिम चलाई। उसके बाद हमने टी टाइम तलगंग के ज़रिए एक प्रोग्राम भी अनाउंस किया और वो भी तकरीबन 3-4 माह, 6 माह तक चलता रहा और उसका भी मकसद इंट्रोडक्शन ही था, तारुफ़ था बज़्म असान का। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की दुआओं से हमारे पास 25 अरकान हैं और पूरे ज़िला तलंगाना के मुख्तलिफ़ देहात से जिनका ताल्लुक़ है और माशाअल्लाह उनकी आवाज़ें हैं और कमाल आवाज़ें हैं। तो ये जो चीज़ थी ये हमारे इलाके के लिए भी फ़ख्र का बाइस बनी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस पे बहुत खुश हूँ। और असान की निस्बत से हमने इसका नाम इसलिए रखा कि हज़रत असान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना ख़ान थे। तो इसी माशाल्लाह। मकसद पे हम गामज़न हैं और आप हज़रात से भी और देखने वालों से भी ये गुज़ारिश है कि जब भी नमाज़ वग़ैरह और जब भी दुआ करें, तो ख़ास तौर पर बज़्म असान के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह इस कारवां को नज़र बद से महफ़ूज़ रखे और इस टैलेंट को पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ को पहुँचाए। अच्छा अरशद भाई, जब आपने इसको शुरू किया, शुरू में आपको पता है फाइनेंशियली मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल। तो इनको आपने किस तरीके से हल किया? क्योंकि आपको तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, थोड़ा इस हवाले से हमें बताएँ। हाँ, फ़ाइनेंशियली हवाले से जो भी हमारा मेंबर बना शुरू में ना, तो उसका 50% तो मैंने खुद अपनी जेब से अदा किया। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। जी, 50% जो है वो मैंने जेब से अदा किया और फिर हमने अक़वाल के ख़ास तौर पर हमारे हर दिल अज़ीज़ शख़्सियत हैं हाजी राज़ अमान साहब, अक़वाल की सरज़मीन तक उन्होंने हमारे साथ बेहद ताउन किया और जब भी कोई इवेंट हुआ या जब भी कोई ऐसा मसला दरपेश आए या मसाइल आए, तो हम जब भी गए तो उन्होंने फ़ाइनेंशियली भी हमारी बहुत मदद की, कानूनी भी हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ चले और बाकी भी दीगर भी अहबाब इसी तरह माशाअल्लाह बड़े-बड़े अच्छे नाम और बड़े-बड़े अच्छे लोग। लेकिन इसमें मैं फ़रामोश नहीं करना चाहूँगा अगर ये ज़्यादती होगी कि हमारे इलाके की एक और भी हर दिल अज़ीज़ शख़्सियत है। आने वाले दिनों में आपकी चैनल पे इंशाल्लाह मैं उन्हें देखूँगा भी, मेरी चाहत है, मियाँ वाल साहब। वो बहुत ही अपने इलाके के लिए टेक्निकल ज़हन और टेक्निकल बंदा और समाजी बंदा है और उसने ही हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अपने अक़वाल के अंदर और हमारी जहाँ-जहाँ पहुँच नहीं थी, वहाँ-वहाँ तक उन्होंने हमारी वो ज़रिया बने और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने मौजूद हैं। जी, जी, इंशाल्लाह ज़रूर उनका भी इंटरव्यू लेंगे और उनके भी तासुरात जानेंगे। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 3 साल हो गए हैं बज़्म असान को चलाती है। अभी आप क्या समझते हैं कि ये खुद सर्वाइव कर रही है या अभी भी आपको अपनी जेब से या लोगों के जमा करके पैसे वग़ैरह मतलब आप फंड इकट्ठा करते हैं और उस तरीके से चलाते हैं या अभी ये खुद ही फाइनेंशियल हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि ये जो हमारी अब 21 मार्च 2023 को जो महफ़िल होने जा रही है, वो बज़्म असान बिल्कुल ₹1 भी बाहर से नहीं ले रही। वो अपनी हमने फंडिंग की, ये 25 माशाल्लाह, लड़कों ने और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खुद कफ़ील हैं इस बारे में। हाँ, माशाल्लाह। ये है कि कहीं पे मसाइल आते हैं, तो डोनेशन वाले हज़रात जो है, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा ताउन कर लेते हैं। लेकिन अभी हम खुद मुख्तियार हैं इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप इसको कहाँ तक देख रहे हैं? जी, मैं तो चूँकि मेरा इसमें जहाँ पर हमारे नाथखां हज़रात का पसीना है, वहाँ पर मेरा खून गिर रहा है। तो मैं तो इसको बहुत ही बुलंदियों पे देख रहा हूँ और मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर दिन-रात अपनी मेहनत की और अपने इस इलाके के टैलेंट को जहाँ तक मेरी पहुँच थी, मैंने उससे बढ़कर अपने इस इलाके की आवाज़ को जो है वो जानदार बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि हम इस वक़्त सूबा पंजाब में कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है, मैं ये तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि जो तलगंग ज़िला का नाथखानों का मुकाबला कर अच्छा सके। अरशद भाई, कोई ऐसा वाक़या हो जी। जो आपके ज़हन से अभी तक उतर ना सका हो और आपके ज़हन में बिल्कुल घर कर गया हो दिल में हुँ। और वो आप कोई सुनाना चाहें तो इस हवाले से? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक रूहानी शख्सियत गुज़रे हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं।
मेरी ज़िंदगी की जो तब्दीली है या ये जो दाढ़ी आपके सामने माशा सुन्नत अमल है, ये वाक़या आज तक जब याद आता है तो मैं इस पे अपनी ज़िंदगी के ऊपर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इससे बार-बार दुआ माँगता हूँ कि शुक्र है हम किसी नेक वली की महफ़िल में बैठे और बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी बदल गई। वरना आज जो जिस इलाके में हम रहते हैं, आपको पता है कि वो सकाफ़ती इलाका ज़्यादा है और यहाँ पर हर किस्म के वो शोबाजात भी मौजूद हैं और प्रमोट करने में 1-2 मिनट ही चाहिए। तो हमारा इकबाल गाँव इसमें सर-ए-फ़हरिस्त है। लेकिन मैं वो जो बात बताना चाह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया कि मौलाना अज़ीज़ रहमान हज़ारवी साहब एक बड़ी रूहानी शख्सियत गुज़रे हैं। मैं उनके यहाँ जुम्मे पे था, जुम्मे का दिन था और हज़रत मदीना मुनव्वरा से नया-नया सफ़र करके आए थे। तो जुम्मे को खुतबा देने के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि जो बंदा दाढ़ी कटवाता है या मुड़वाता है, तो मैं उस वक़्त कटवाता था, रखी हुई थी। तो वो अगर भई मैंने ये मस की हुई मस्जिद नबवी और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक से खुशबू है। एक तो मैं उसके लिए उसके चेहरे मुबारक पर ये खुशबू लगाऊँगा और दूसरा उसके लिए दुआ करूँगा, ठीक है जी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खूबसूरत और खूबसीरत इंसान बनाए। आप माशाअल्लाह। यकीन मानें कि मैं पहले 2 मिनट तो खामोश रहा, लेकिन उस पूरे भरी मस्जिद में रावलपिंडी में मैं जो है वो खड़ा हो गया पहली सफ में और उस पूरे मजमे में हम 4 नौजवान खड़े हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ज़िंदगी का ये ऐसा वाक़या था कि उसके बाद मैंने फिर दाढ़ी रख ली और अल्लाह ने सारे रुख ही फेर दिया। अब जितनी भी परेशानियाँ पहले वाली ज़िंदगी में थी, वो यकीन मानें कि अब खुशहाली में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तो ये जो आप वापडा की नौकरी करते हैं, हुँ, गवर्नमेंट जॉब है, तो हुँ, इसके साथ बज़्म एहसान को जो वक़्त दे रहे हैं, तो हुँ, बाज़ औक़ात आपके पास टाइम नहीं भी होता, जॉब पे भी होते हैं हुँ। और यहाँ पे मसरूफ़ियत आ जाती है, तो इसको फिर किस तरह डील करते हैं? हाँ, मेरा एक अगर दिमाग वापडा के कंज़्यूमरों के साथ चूँकि हमारा अवाम-उन्नास से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है जॉब का। तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा वक़्त जॉब के मैदान में जॉब को दूँ और उसमें मैं बज़्म एहसान को वक़्त नहीं देता हूँ। और एक ये सुन्नत अमल भी है कि जिस काम में, जिस शोबे में आप हैं, आप अगर उसको अपनी तरफ से वक़्त पूरा देते हैं तो इंशाअल्लाह बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो हलाल की रोज़ी आपकी उसमें बरकत होगी बिल्कुल, और दूसरा ये है कि जी मैं जान लड़ाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ इसके कई शायद आप भी गवाह हों या बहुत सारे दोस्त अक़बाल और भी गवाह हैं कि मैं सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, मैं अपनी फ़ील्ड में सुबह सवेरे पहुँच जाता हूँ। और कई दफ़ा आपसे भी राब्ता हुआ, तो मैं असर से पहले अपना काम जो मेरे ज़िम्मे होता है वो वाइंड अप करता हूँ और उसके बाद थोड़ा-सा टाइम जो है वो घर वालों का और फिर 3-4 घंटे ना रोज़ाना के तौर पे मैं बज़्म एहसान को देता अच्छा हूँ। अरशद भाई, घर वालों से बात शुरू हुई है, आपने ज़िक्र किया, तो घर वाले डिस्टर्ब नहीं होते? कहते नहीं हैं जी, सुबह आप जॉब पे जाते हैं और सुबह नौकरी पे चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, फिर ये बज़्म एहसान, फिर ज़ाहिर है इसमें अभी एक मसला भी हो ना, एक दोस्त का भी काम हो तो आपको पता है 2-3 घंटे मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर आपको कभी 10 बजे रात को वापस आ रहे हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं और कभी सुबह वापस आते होंगे तो फिर दोबारा जो है ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो घर वाले नाराज़ होते हैं या खुश होते हैं या उनके क्या रिव्यू हैं और आपके बच्चों के क्या रिव्यू हैं? अच्छा, सच्ची बात तो ये है कि आपने वो खरी बात पूछ ली जो यानी बहुत कम सवाल में आती है। तो घर वाले तो वाक़ई इससे परेशान भी रहते हैं और उनका परेशान रहना हक़ भी बनता है कि बहुत कम वक़्त जो है उन्हें मुयस्सर आता है मेरे साथ उठने बैठने का। लेकिन जब मेरी कोशिश भी ये होती है कि जो भी उनकी जितनी भी मैं सहूलियात अपनी जानिब से दे सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास वक़्त भी होता है तो मैं अपने घर वालों को नज़रअंदाज़ बिल्कुल नहीं करता। अलबत्ता ये है कि वो इस पे चूँकि ये काम ऐसा है कि इसका इनकार भी नहीं है। तो इस लिहाज से वो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, वो ताउन भी भरपूर करते हैं और बच्चे भी माशाल्लाह खुश होते हैं इस हवाले से, तो बेहतर जा रहे हैं। अच्छा अरशद भाई, कोई ऐसा पैगाम जो आप लोगों को देना चाहें, हुँ, आवाम तक पहुँचाना चाहें, हुँ, जो आपकी दिली आरज़ू हो कि ये इन तक पहुँचे, हुँ, हुँ। तो वो पैगाम दे दें? हाँ, पैगाम तो अगर यूँ कहा जाए तो मुझ समेत सबके लिए है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। पैगाम यही है मेरे दोस्तों कि जो अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगियों को हमने तब्दील करना है। जितना इस वक़्त ये मादी परस्ती का दौर चल रहा है, इसके अंदर अगर हमने सीरत को अपना लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना लिया, तो हमारी इस दुनिया में भी दायमी खुशियाँ हैं और उख़रवी ज़िंदगी भी हमारी कामयाब है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
आमीन आमीन। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, आप महफ़िलों में जाते रहते हैं माशाल्लाह, हमसे ज़्यादा आपको तजर्बा है, तो 2 बोल नात के, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़ा बहुत गुनगुनाते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ना 2 बोल सिर्फ बस। अच्छा, मेरी उसमें आप भी मौजूद थे, मैं वही करता हूँ। अल्लाह अल्लाह करिए तां गल बनदी ए, मुर्शिद कामिल फड़िए तां गल बनदी ए। अल्लाहू दियां ज़रबां ला के सीने ते, अल्लाहू दियां ज़रबां ला के सीने ते, सीना रोशन करिए तां गल बनदी ए। और आखिरी शेर और आखिरी कलाम शेर, सौ गलां दी इक्को गल तनवीर मियां, सौ गलां दी इक्को गल तनवीर मियां, सच्ची तौबा करिए तां गल बनदी ए, अल्लाह अल्लाह करिए तां गल बनदी ए। खूबसूरत अशार के साथ हम अरशद भाई से इजाज़त चाहेंगे, और हमारी कोशिश होगी मज़ीद भी हम अच्छे इंटरव्यूज़ आप तक पहुंचा सकें और उनकी दिल की बातें जो है आप तक पहुंचा सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।